This convection chapter is divided into two parts. First is external flow, and external flow there is only one, forced and free. Now we are studying about forced. So force is also divided into two: external forced flow and internal forced flow. An external forced flow, flow over a pipe. So I am going to tell you some important things about flow in a pipe. What important things are there in a flow in a pipe, and what is useful in a question. So there will be a plate whose temperature at all the points will be constant. So Ts minus T infinity is always constant value, and also Q double dash I means heat flux through each area, each point is same. So in that one question of gate, Q double dash, even if you find local Nusselt number, it will be the same, no worries. So thing is, yes, this is what written this first page. Second page is this. The most important formula is at the interface, the conduction is equal to convection is equal to Kf area total dt upon dy, y is equal to 0, and what t is given function of y, and of course thermal boundary layer changes with x. dt upon dy will be given, no worries, use this formula, you don't have to use too much of brain. Kf dt upon dy, y is equal to 0 is equal to h average area total Ts minus T infinity. If area is local at a point area, then h. So if there is h average, then the thing will come h average, so area total. Most of the equation in question, Nusselt number average is given. There is no use of Nusselt number local unless asked in question. So most important formula is this only in pipe at interface, and dt upon dy is called temperature gradient. And now the second important is Nusselt number. Nusselt number is equal to H LC upon K, fluid. For a pipe, LC is equal to length of the pipe. For question solving I am saying, not for the definition. Yes. And the second important thing is here, forced convection of flat plate external flow. Here comes the concept of thermal boundary layer. एंड थर्मल बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब दोनों प्लेट और हवा के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो. अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो थर्मल बाउंड्री लेयर नहीं बनेगी, और अगर वेलोसिटी नहीं दी है तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन का ही क्वेश्चन नहीं है, तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी नहीं बनेगी. तो ये है बाउंड्री लेयर में क्या होता है, बाउंड्री लेयर के अंदर जैसे उसके अंदर वेलोसिटी वेरिएशन होता था हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के अंदर, इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसलिए dt अपन dy दिया जाता है. अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है प्रेंडल नंबर. प्रेंडल नंबर ये म्यू cp अपन k फ्लूइड, और एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है एट गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो ये किसी भी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट प्रॉपर्टी. अब प्रेंडल नंबर रेज टू 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा हाइड्रोलिक अपन डेल्टा थर्मल. लैमिनार फ्लो के केस में ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. डेल्टा थर्मल के केस में, मतलब लैमिनार फ्लो के केस में प्रेंडल नंबर रेज टू 1/3 होता है रेशियो. अगर प्रेंडल नंबर 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, प्रेंडल नंबर 1 हो, जैसे एयर के लिए प्रेंडल नंबर अराउंड 1 रहता है या फिर 0.706 है सीन इन क्वेश्चन. तो ये है. अब इवोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ, हाँ, अब नसल्ट नंबर एवरेज की वैल्यू होती है, इम्पॉर्टेंट है लैमिनार फ्लो के लिए. जहाँ तक लैमिनार वहाँ तक वैलिड है. 0.664 REL रेज टू हाफ, प्रेंडल नंबर रेज टू 1/3. नसल्ट नंबर से आएगा एवरेज H LC अपॉन K फ्लूइड L. फिर अगर एवरेज है तो फुल लेंथ ऑफ द प्लेट होगी, जहाँ तक लैमिनार है वहाँ तक. ये लैमिनार फ्लो की बात चल रही है, ये है. और हाँ, नसल्ट नंबर ये इसका कोई काम नहीं, नसल्ट नंबर एट x का कोई काम नहीं.
Q होता है H एवरेज एरिया ऑफ द पाइप TS माइनस T इन्फिनिटी। TS माइनस T इन्फिनिटी हमेशा वैसे भी कांस्टेंट ही है। एक और है लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, मतलब कुछ देर तक लैमिनार फिर टर्बुलेंट बन जाता है फ्लो। तो उसके अंदर से क्या मैंने बोला, नसर नंबर एवरेज का ही काम है। नसर नंबर एवरेज होगा 0.037 ReL⁴/5 माइनस 870 होल ब्रैकेट Prandtl नंबर (1/5). इसके नसर नंबर एवरेज से निकालेगा H एवरेज लेंथ ऑफ द पाइप। समझ लो यहाँ पे पूछा है, यहाँ तक पाइप का पूछा है। एक प्लेट होगी जो होगी ऐसे करके ऐसे, जिसका एक लेंथ होगा K फ्लू। H एवरेज आ जाएगा नसर नंबर एवरेज से, उससे Q थ्रू द पाइप आ जाएगा H एवरेज एरिया ऑफ द प्लेट, जहाँ तक समझ लो टर्बुलेंट कोई रीजन तक पूछा है, इनटू TS माइनस T इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है TS माइनस T इन्फिनिटी। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं यूज़ करना है, जब सिर्फ लैमिनार का तक का दिया हो, जब लैमिनार टर्बुलेंट दोनों हो तब यूज़ करना है इसको। और उसमें वो FM का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि टर्बुलेंट है तो फुल टर्बुलेंट मानो, माइनस यहाँ तक टर्बुलेंट मान के माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास अकेले टर्बुलेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब H जो होता है, H वेरीज विथ X, लैमिनार के लिए अलग, टर्बुलेंट के लिए अलग। लैमिनार के लिए H एवरेज की वैल्यू कम होती है, टर्बुलेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस आर द थिंग विच आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो हमें लैमिनार फ्लो के बारे में सिर्फ रेनॉल्ड नंबर ही बता सकेगा कि ये लैमिनार फ्लो है कि नहीं, कोई और फ्लो नहीं बता सकेगा, मतलब और कोई नंबर नहीं बता सकेगा। और अगर ये जैसे रेनॉल्ड नंबर इतना है, इससे मैक्सिमम क्यों ही निकालना होगा। हाँ, तो इससे क्यों निकालना होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, जो है कौन से पेज पे, जो है इस पेज पे 3.14 क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है। ये तो वही सिग्मा थर्मल अपन उसकी बात कर रहे हैं, ये तो ट्यूब का है। ये टेम्परेचर वो dt/dy से कुछ करना होगा, Q डबल डैश फ्लैट प्लेट, ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अब ये रेशियो ऑफ थर्मल लेयर, बाउंड्री लेयर इतना दिया है। हाँ, तो लैमिनार फ्लो के लिए सिग्मा हाइड्रोलिक अपन सिग्मा थर्मल होता है PR⁻⁴। तो इससे आ जाएगा Prandtl नंबर आ जाएगा। मतलब देखो Prandtl नंबर ऑफ P का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ए आंसर आसानी से आ जाएगा। यूज़ दैट PR⁻⁴ सिग्मा हाइड्रोलिक अपन सिग्मा थर्मल, उससे क्या, उससे कि, और ये रेशियो दिया है 2, तो 2 = PR⁻⁴, तो PR 8। अब वो नसर नंबर वाली इक्वेशन में डाल दो, नसर नंबर एवरेज 0.664 ReL⁴/2 PR⁻⁴। तो शायद इसमें 140 आ रहा है, इसका मतलब। और हाँ, इस नसर नंबर की इक्वेशन के लिए 0.664 नहीं लिया है, पर अंदाजे से आंसर ए आ जाएगा, पर इसके लिए 0.664 नहीं लिया। वो 35, इसका ऐसे यूज़ कर, 35 = कॉन्स्टेंट ReL⁴/2 1/8⁻⁴, तो इससे C की वैल्यू आ जाएगी। अब नसर नंबर की सेकंड में इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, तो उससे आ जाएगा 140। अब ये है फ्लैट प्लेट, अनलेस इट इज़ गिवन, मतलब अगर रेनॉल्ड नंबर नहीं निकाल सकते, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो उससे लैमिनार फ्लो मान के ख़त्म करो। और लोकल नसर नंबर जब तक स्पेसिफाई नहीं किया, अगर लोकल नंबर स्पेसिफाई किया तो लोकल एरिया आएगी, TS माइनस T इन्फिनिटी तो सेम ही रहेगा, और लोकल जगह का TA वो आएगा अपना जो भी। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये फ्लैट प्लेट में बहुत आसान है। अब एक और क्वेश्चन है जो जस्ट नाउ आई डिड फ्रॉम द क्वेश्चंस। So here in this question, the question is not here, but it was saying to find H local। और ये देखिए टेम्परेचर मैंने बोला था सिग्मा T वेरीज विथ X, तो टेम्परेचर का वो ग्राफ भी जो होगा वो वेरीज विथ X।
तो ये एट अ पर्टिकुलर लोकेशन टेम्परेचर का ये वेरिएशन दिया है, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एट एक्स टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है। तो एट अ पर्टिकुलर लोकेशन के एफ वैल्यू कॉन्स्टेंट डी टी अपॉन डी वाई वाई इज इक्वल टू 0, एच लोकल, एरिया लोकल, टी एच माइनस इन्फिनिटी। एरिया लोकल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एरिया लोकल इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कट जाएगा, तो इससे एच लोकल आ जाएगा 1। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड, इफ देर इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो, देन टर्बुलेंट फ्लो में व्हाट रिमेन्स सेम, टर्बुलेंट फ्लो में सिग्मा हाइड्रोलिक इज इक्वल टू सिग्मा थर्मल, देयर इज नो रिलेशन provided for flat plate and definitely no relation for pipes. So this PR is not dependent on anything, not it is constant. So this is the thing. Thank you. Now I am going to tear off all these pages. So before tear off, I will take a photo on other mobile. Thank you.